سندھ کے 14 اضلاع میں بلدیاتی الیکشن کا پہلا مرحلہ مکمل، غیر حتمی غیر سرکاری نتائج آنے کا سلسلہ جاری۔ پہلے مرحلے میں تیر نشانے پر جا لگا، بلہ ٹوٹ گیا اور پتنگ کٹ گئی۔ 6277 سیٹوں میں سے 2455 کے نتائج موصول ہو گئے۔ پیپلز پارٹی 2288 نشستوں کے ساتھ سر فہرست، جی ڈی اے 65، جے یو آئی 43 اور آزاد امیدوار 40 نشستوں پر کامیاب ہو گئے۔ پی ٹی آئی صرف 13 سیٹیں جیت سکی۔ میونسپل کمیٹی کی 354 میں سے 247 سیٹوں پر جیالے امیدواروں نے بازی مار لی۔ ٹاؤن کمیٹی کی 694 نشستوں پر پیپلز پارٹی 372 سیٹیں لے کر سب سے آگے۔ جی ڈی اے کے 52 امیدوار جیت گئے۔ نتائج آنے کا سلسلہ جاری ہے۔ بلدیاتی انتخابات کے پہلے مرحلے میں پاکستان پیپلز پارٹی کو اپنے گڑھ لاڑکانہ میں شکست کا سامنا۔ لاڑکانہ ٹاؤن کمیٹی باڑہ میں لاڑکانہ عوامی اتحاد 14 میں سے 8 نشستوں پر کامیاب ہو گئی۔ پیپلز پارٹی 6 نشستیں لے سکی۔ لاڑکانہ ٹاؤن کمیٹی ڈوکری میں بھی پیپلز پارٹی کو شکست ہوئی۔ ٹاؤن کمیٹی ڈوکری کے 5 وارڈز میں سے 3 پر گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس نے میدان مار لیا، 1 پر پیپلز پارٹی جبکہ 1 پر آزاد امیدوار کو غلط نشان الاٹ ہونے پر انتخابات مؤخر کر دیا گیا۔ دوسری جانب کوٹ ڈی جی میں بھی پیپلز پارٹی شکست کھا گئی۔ منظور وسان کے آبائی حلقے کوٹ ڈی جی کے 9 وارڈز میں سے جی ڈی اے نے 5 وارڈز پر کامیابی حاصل کی۔ منظور وسان کو کوٹ ڈی جی سے 2 بار ایم این اے اور 5 بار ایم پی اے رہ چکے ہیں۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں پیپلز پارٹی کے مخالفین نے جتنے بھی اتحاد بنائے تمام اتحاد پاش پاش ہو گئے۔ پیپلز پارٹی نے سندھ کے بلدیاتی انتخابات میں اپنے مخالفین کو تاریخی اور عبرتناک شکست دی ہے۔ لاڑکانہ کی عوام نے بھٹو دشمن تمام قوتوں کا بوریا بستر گول کر دیا۔ لاڑکانہ میں تاریخی فتح کے بعد میئر اور ڈسٹرکٹ کونسل کا چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوگا۔ شرجیل انعام میمن نے کہا کہ سندھ کے ہر ضلع میں پاکستان پیپلز پارٹی نے بہت بڑی اکثریت کے ساتھ فتح حاصل کی ہے۔ سندھ کی عوام نے پی ٹی آئی، جی ڈی اے اور دیگر پیپلز پارٹی مخالف جماعتوں کا سندھ سے صفایا کر دیا۔ جڈو میں یونین کونسل فضل بھمرو کے پولنگ سٹیشنز پر ایک اور امیدوار نے ساتھیوں سمیت پولنگ سٹیشن پر دھاوا بول دیا۔ سیاسی جماعت کے کارکنوں کی فائرنگ، پریزائڈنگ افسر اور عملے پر تشدد کیا۔ پولنگ سٹیشن ملوک گرگیز کے بیلٹ باکس بھی اٹھا کر کارکن فرار ہو گئے۔ ادھر میرپور خاص میں ایم کیو ایم پاکستان نے انتخابی نتائج ماننے سے انکار کر دیا۔ ایم کیو ایم پاکستان کی جانب سے ڈپٹی کمشنر آفس کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ ایم کیو ایم پاکستان نے میرپور خاص میں انتخابی نتائج ماننے سے انکار کر دیا۔ سندھ میں بلدیاتی انتخابات کا پہلا مرحلہ خاصا ہنگامہ خیز رہا۔ ووٹنگ کے دوران شدید بد انتظامی دیکھنے سندھ کے عوام نے بلدیاتی انتخابات میں پیپلز پارٹی کے مخالفین کو دھول چٹائی۔ پی ٹی آئی کو تو بلدیاتی انتخابات کے لیے امیدوار ہی نہیں ملے تھے۔ صوبائی وزیر سعید غنی کہتے ہیں کہ عمران خان سیاسی طور پر مردہ بن چکے ہیں۔ آئندہ انتخابات میں پی ٹی آئی سے ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ عمران خان میں ہمت ہے تو سندھ اسمبلی میں پی ٹی آئی ممبران سے استعفے لے کر دکھائیں۔ ادھر سوات میں پی کے 7 پر ضمنی انتخابات، پی ٹی آئی نے میدان مار لیا۔ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق پی ٹی آئی کے فضل مولا 17,395 ووٹ لے کر کامیاب۔ اے این پی کے حسین احمد 14,604 ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں۔ ضمنی انتخاب میں کامیابی پر پی ٹی آئی کے کارکنوں کا جشن، آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا۔ بلیٹن میں واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ بریک کے بعد اب آپ کو بتائیں شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں میں فائرنگ، 7 دہشت گرد مارے گئے۔ فائرنگ کے تبادلے میں پاک فوج کے 2 جوان بھی وطن پر قربان ہوئے۔ ہلاک دہشت گردوں کے قبضے سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد ہوا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق شمالی وزیرستان کے علاقے غلام خان قلعے میں سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ ہلاک دہشت گردوں کے قبضے سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق مارے گئے دہشت گرد سیکیورٹی فورسز کے خلاف کئی کارروائیوں میں ملوث تھے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فائرنگ کے شدید تبادلے کے دوران صوبیدار منیر حسین اور حوالدار بابو خان بہادری سے لڑتے ہوئے دھرتی پر قربان ہو گئے۔
सुपर टैक्स IMF से मुज़ाकरात और बजट की मंजूरी का मामला। वज़ीर आज़म ने IMF से मुज़ाकरात पर इत्तेहादियों के एतमाद में लेने का फैसला किया है। शहबाज शरीफ ने हुकूमत की इत्तेहादी जमातों के अरकान असम्बली को आज इशाइये पर मदऊ कर लिया। इत्तेहादियों को मुआशी चैलेंजेस से निपटने के लिए हुकूमती हिकमत अमली पर एतमाद में लिया जाएगा और वज़ीर आज़म इत्तेहादी जमातों से मुआशी चैलेंजेस से निपटने पर मुशावरत समेत महंगाई के खात्मे के लिए अरकान असम्बली से तजावीज़ लेंगे। मुआशी बहाली और यकीनी तरक्की के लिए अमन व अमान बुनियादी तकाजा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तान की सलामती और दिफा पर किसी किस्म की आंच नहीं आने देंगे। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक हमारी जदोजहद जारी रहेगी। लाहौर में वज़ीर आज़म की सदारत में अमन व अमान पर इजलास हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क भर में अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की हिदायत की। स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में इजाफे पर इजहार तशवीश भी किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने FATF शराइत की तकमील के हवाले से कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी को सराहा। दूसरी जानिब आर्मी चीफ का गैर मामूली दौरा सऊदी अरब कौम के लिए बड़ी खुशखबरी। सऊदी क़यादत ने पाकिस्तान से दोस्ती का हक अदा कर दिया। आर्मी चीफ की कोशिशों से सऊदी अरब ने तेल की वाजिबुल अदा रकम की मुद्दत में तोसी कर दी है। आर्मी चीफ की सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। जनरल कमर जावेद बाजवा को आला तरीन सऊदी एजाज से नवाजा गया। शाही महल में आर्मी चीफ के एजाज में खसूसी तकरीब का भी एहतमाम किया गया। صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بتقليد الفريق الأول الركن قمر جاويد باجوا وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الممتازة। पाक सऊदिया ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का सऊदी अरब का दौरा। वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। आर्मी चीफ की सऊदी नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफा और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से भी मुलाकात हुई। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी की उमूर, दो तरफा दिफाई, सिक्योरिटी ताउन और इलाकाई अमनो इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल हुआ। आर्मी चीफ ने कहा पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ तारीखी और बरादराना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। शाही महल में आर्मी चीफ के एजाज में तकरीब का एहतमाम हुआ। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को किंग अब्दुल अजीज मेडल ऑफ एक्सीलेंट क्लास से नवाजा गया। قمر جاويد باجوا وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الممتازة। दोनों ममालिक के दरमियान मुश्तरका तरबियत, फजाई दिफा, इंसदाद दहशतगर्दी, मवासिलात, इंफॉर्मेशन डोमेन के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। चेयरमैन उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने आर्मी चीफ के लिए सऊदी मेडल को कौम के लिए एक बड़ा एहसास करार दिया है। दिफाई तजियाकारों का भी कहना है कि मेडल जनरल कमर जावेद बाजवा की सलाहियतों का एतराफ है। आर्मी चीफ के लिए एजाज मुल्क को कौम के लिए एजाज है। चेयरमैन उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी का खैर मकदम। कहते हैं कौम खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी अवाम की शुक्रगुजार है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज का कहना है ये मेडल जनरल कमर जावेद बाजवा की सलाहियतों का एतराफ है। सऊदी अरब से हमारे तारीखी ताल्लुकात हैं। बहुत बड़ा रिकग्निशन है उनकी सर्विसेज पाकिस्तान और सऊदी अरब की दोस्ती को आगे बढ़ाने। पाकिस्तान के लिए बहुत सी इकोनॉमिक मुआशी राहें खोली हैं। जब भी गए हैं कभी अगर वहाँ कोई भी प्रॉब्लम हुई है तो सऊदी की लीडरशिप ने शवामी साहब को बहुत खुले दिल से एक्सेप्ट किया। लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ ने कहा आर्मी चीफ की मुल्क को कौम के लिए बड़ी खिदमत है। सऊदी एजाज के बाद दोनों ममालिक के ताल्लुकात में मजीद वसअत आएगी। अब जो आर्मी चीफ हैं वो ज़ाहिर है वो मिलिट्री डिप्लोमेसी के पिनैकल पे होते हैं और आर्मी चीफ जो है वो उनका भी बिकॉज हमारी सऊदी अरब के साथ मिलिट्री टू मिलिट्री भी बहुत अच्छे कॉन्टेक्ट्स हैं और ताल्लुकात हैं, ट्रेनिंग्स हैं और आर्मी चीफ को मेडल से नवाजने का मतलब ये है कि उनकी सर्विसेज को रिकग्नाइज किया गया है। तजियाकारों का कहना है सिपा सलार को सऊदी एजाज मिलना पूरी कौम के लिए फख्र का बाइस है। अब कुछ बात करते हैं कोरोना के हमलों की। पाकिस्तान में कोरोना वायरस फिर सर उठाने लगा। आज मजीद 2 मरीज इंतकाल कर गए। 24 घंटे के दौरान 382 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। 13,412 टेस्ट किए गए।
NHI کے مطابق مثبت کیسز کی شرح 2.85% رہی، جبکہ کورونا سے متاثر 87 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پاکستان میں کرونا وائرس آج مزید 2 افراد کی جان لے گیا۔ 24 گھنٹے کے دوران 382 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی، جبکہ مثبت کیسز کی شرح 2.85% رہی۔ اور کراچی کے شہریوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری منصوبے کا آج افتتاح کریں گے۔ وزیر ٹرانسپورٹ شرجیل انعام میمن کی سربراہی میں محکمہ ٹرانسپورٹ نے پیپلز انٹرا ڈسٹرکٹ بس سروس کے افتتاح کی تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ پہلے مرحلے میں شہر کے 7 روٹس پر 240 بسیں دوڑیں گی۔ اس بارے میں مزید ڈیٹیلز ہیں کہ محمد حماد سے۔ پیپلز انٹرا ڈسٹرکٹ بس سروس کا آغاز آج ہونے جا رہا ہے، جس کے لیے ایک تقریب منعقد کی گئی ہے، اور تقریب کے مہمان خصوصی جو ہیں وہ وفاقی وزیر خارجہ اور پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو اور وزیر ٹرانسپورٹ شرجیل انعام میمن ہوں گے، جس کے لیے جو ہے ایک صفائی اور ستھرائی کا بھی کام شروع کر دیا گیا ہے۔ پہلے مرحلے میں جو ہے وہ 7 روٹس پر جو ہے یہ بسیں چلائی جائیں گی، 240 بسیں جو ہے یہ 7 روٹس پر چلیں گی، اور ساتھ ہی ساتھ ٹاور تا ماڈل کالونی روٹ 1 پر بس سروس چلنے کا پہلا آغاز ہوگا۔ مختلف کراچی کے مختلف مقامات جس میں اورنگی ٹاؤن، کورنگی، لانڈی، ساتھ ہی ساتھ جو ہے لیاری، سائیڈ ایریا، بلدیہ ٹاؤن، خداداد کالونی، سرجانی، نارتھ کراچی، اور ان تمام مقامات پر جو ہے یہ مختلف اوقات میں جو ہے یہ بسیں چلیں گی۔ اس کے بعد جو ہے کل سے کراچی کے مختلف مقامات پر جو ہے یہ بسیں چلائی جائیں گی۔ جی، وفاقی دارالحکومت میں اورنج لائن میٹرو کے بعد اب شہریوں کے لیے بلو لائن اور گرین لائن میٹرو کا بھی آغاز کیا جا رہا ہے، جس کے لیے 30 بسیں اسلام آباد پہنچ چکی ہیں۔ میٹرو پلیٹ فارم بھی تیار کر لیے گئے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف جلد میٹرو کے نئے روٹس کا افتتاح کریں گے، تفصیل بتا رہے ہیں شیراز احمد شیرازی۔ اور موڑ سے نیو اسلام آباد ایئرپورٹ تک میٹرو بس سروس کے آغاز کے بعد 2 نئے روٹس کا اضافہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر اسلام آباد کے شہریوں کو بہتر سفری سہولیات کی فراہمی کے لیے 30 نئی بسیں بھی اسلام آباد پہنچا دی گئی۔ بلو لائن اور گرین لائن میٹرو بھی چلنے کو ہے تیار۔ CDA نے میٹرو پلیٹ فارمز تیار کر لیے۔ چیئرمین CDA عامر علی احمد میٹرو پروجیکٹ کی خود نگرانی کر رہے ہیں۔ میٹرو چلنے تک ہفتہ وار چھٹیاں بھی منسوخ کر دی گئی۔ گرین لائن بھارکھوں سے پیمز ہسپتال تک چلے گی، جبکہ بلو لائن میٹرو گلبرگ گرین سے پیمز تک چلے گی۔ 60-70 روپے میں کرایہ دے کے پیمز آنا پڑتا ہے، پھر اپارا اگر آنا پڑے ہمیں اتنا کرایہ دینا پڑتا ہے، اس لیے میٹرو کے ہمیں بہت سہولت سے اس سے ہمیں بہت فائدہ ہوگا۔ اس سے یہ ہے کہ بارہکوں کی عوام کو بہت اچھی سہولت ملی ہاسپٹل آنے کی۔ شہریوں کا کہنا ہے اس منصوبے سے ان کی سفری دشواریوں میں کمی آئے گی۔ گرمی کا عالم ہوتا تھا، اوپر سے پیٹرول مہنگا، کرائے بھی زیادہ تھے، ابھی یہ ماشاءاللہ اتنی خوبصورت بس، اور یہ دیکھیں کتنی خوبصورت جگہ بنی ہے۔ پیٹرول کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں، تو یہ ایک تو کرایہ کم ہو جائے گا اور غریب عوام جو ہے نا اس پہ آسانی سے سفر کر سکے گا۔ اسلام آباد میں چلنے والی اس گرین لائن اور بلو لائن میٹرو کا افتتاح وزیر اعظم شہباز شریف کریں گے۔ CDA کی جانب سے اس بہترین منصوبے کے تحت اسلام آباد اور راولپنڈی کے باشندوں کو بہترین سفری سہولیات مہیا کی جا سکیں گی، جس پر شہری بھی کافی خوش دکھائی دے رہے ہیں۔ کیمرہ مین راجہ عباد کے ساتھ شیراز احمد شیرازی، نیوز اسلام آباد۔ لاہور کے ضمنی انتخاب کی تیاریاں۔ عمران خان نے لاہور کا طوفانی دورہ کیا۔ شہر کے مختلف علاقوں میں ورکرز کنونشن سے خطاب کے دوران حکومت کو کڑی تنقید کا نشانہ بناتے رہے۔ کہا ایمپائر مخالفین کے ساتھ ہیں، پیسہ بھی چل رہا ہے، ایمپائر ساتھ ہونے کے باوجود انہیں شکست دیں گے۔ 20 ضمنی الیکشن فیصلہ کریں گے کہ الیکشن کمیشن پر اعتبار کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ عمران خان IG پنجاب کو بھی دھمکیاں دیتے رہے۔ 3.5 سال یہ سب مل کے ایک کہتے تھے، آواز آتی تھی کہ جی بہت مہنگائی ہو گئی، عمران خان نے مہنگائی کر دی۔ آج 2 مہینے میں انہوں نے وہ مہنگائی کی جو ہمارے 3.5 سال میں نہیں ہوئی۔ 30 روپیہ ڈالر مہنگا ہوا، اس کا مطلب سب چیزیں مہنگی ہوں گی۔ یہ پہلی مہنگائی کا لہر آئی ہے، ابھی مزید اور آنی ہے۔
मुल्क को नए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की ज़रूरत है। तहरीक इंसाफ आइंदा आम इंतखाबात के लिए फ्रेम वर्क पर बातचीत के लिए तैयार है। PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि नैब तरमीम के बाद नैब अमली तौर पर ख़त्म हो चुका। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट नैब तरमीम और FIA प्रोसिक्यूटर की तब्दीलियों का केस सुनेगी। दूसरी जानिब जमात इस्लामी के महंगाई के खिलाफ ट्रेन मार्च का पहला मरहला लाहौर में इख्तिताम पजीर हो गया। शुरका से खिताब में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, PTI और PDM ने मिलकर मुल्क को नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान के फैसले हुक्मरान नहीं, IMF करती है। उस वक्त आटा और घी सोने की तरह आम आदमी की पहुंच से दूर है। PTI और PDM ने मुल्क को IMF के हवाले किया। कभी कहते हैं सुकून कब्र में है, तो कभी कहते हैं चाय का इस्तेमाल कम कर दें। आपके घोड़े मुरब्बे खाएं और आवाम को जिंदा रहने के लिए रोटी मुयस्सर नहीं। जमात इस्लामी ट्रेन मार्च का तीसरा मरहला आज लाहौर से शुरू होगा। ट्रेन मार्च सिराजुल हक की क़यादत में रावलपिंडी के लिए रवाना होगा। PTI और PDM ने मिलकर इस मुल्क को अमेरिका और आलमी मालियाती इदारों IMF और वर्ल्ड बैंक का गुलाम बनाया। आज 22 करोड़ पाकिस्तानियों की तकदीर के फैसले न कैबिनेट में होते हैं, न कौमी असम्बली में होते हैं, बल्कि IMF के बंद कमरों में होते हैं। और वो फैसला करते हैं कि तुम्हारे मुल्क में फी किलो आटे की कीमत क्या हो, तुम्हारे मुल्क में चाय और चीनी की कीमत क्या हो। और वफाकी वजीर अमीनुल हक कहते हैं कि नौजवान तालीम हासिल करके पाकिस्तान की खिदमत करें। IT की फील्ड में बहुत स्कोप है। नौजवान इस फील्ड में बेहतर मुस्तकबिल बना सकते हैं। शफकत अजीज की रिपोर्ट देखिए। वफाकी वजीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमीनुल हक का कहना है, शफाफ मर्दमशुमारी वक्त की जरूरत है। अगस्त में मर्दमशुमारी शुरू होगी। अगला जनरल इलेक्शन नई मर्दमशुमारी के मुताबिक होगा। मौजूदा हुकूमत के साथ भी हमारी बातचीत तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। 1 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक आप देखेंगे कि पायलट सेंसस का आगाज किया जाएगा और इंशाअल्लाह ताला 31 दिसंबर को, आई रिपीट 31 दिसंबर 2022 को सेंसस मुकम्मल कर लिया जाएगा। 1 जनवरी को ये तमाम डॉक्यूमेंट विल बी हैंडेड ओवर टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एंड दे विल टेक 4 मंथ, 4 महीने लेके उसको डिलिमिटेशन करेंगे। न्यू पोर्ट इंस्टीट्यूट की को चेयरपर्सन हुमा बुखारी ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, उनका इदारा आला तालीमी कमीशन के मेयार को मद्देनजर रखते हुए तलबा को मुख्तलिफ शोबाजात में आला तालीम फराहम कर रहा है। कैमरामैन मोहम्मद जुल्फिकार के साथ शफकत अजीज, न्यू न्यूज कराची। मुल्क की मईशत को सहारा देने के लिए भंग पॉलिसी मुतारिफ। पॉलिसी के तहत कौमी हेम्प और भंग अथॉरिटी बनेगी जो सरमायाकारों को सनती हेम्प और भंग का लाइसेंस जारी करेगी। तफसीलात देखिए इस्लामाबाद से इसरार यूनुस की इस रिपोर्ट में। भंग के जरिए मईशत को मुस्तहकम किया जाएगा। हुकूमत ने पॉलिसी बना ली। भंग की काश्त के लिए लाइसेंस 15 साल के लिए जारी किया जाएगा। अथॉरिटी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में 6 वजारतों और सूबाई चीफ सेक्रेटरीज की नुमाइंदगी होगी, जबकि भंग की खरीदारी, बीज की दरामद, काश्तकारी और ट्रांसपोर्टेशन पर इंसदाद मनशियात फोर्स की कड़ी निगरानी होगी। इंसदाद मनशियात फोर्स सरमायाकारों के मुतारफ करदा बीज का ऑडिट करेगी। अथॉरिटी और ANF की टीमें मुश्तरका तौर पर लाइसेंस होल्डर्स की फील्ड का मुआयना करेंगी। वजारत खुराक का प्लांट प्रोडक्शन भंग के बीज की दरामद या बरामद का NOC जारी करेगा, जबकि भंग अथॉरिटी 5 किस्म के लाइसेंस जारी करेगी। लाइसेंस होल्डर भंग की खरीदारी, बीजों की दरामद और काश्त करने का मजाज होगा और 10 एकड़ जमीन भी रखना होगी। प्रोडक्शन टीम के साथ इसरार यूनुस, न्यू न्यूज इस्लामाबाद। खबरें और भी हैं लेकिन इस ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिए। सुपीरियर कॉलेज मुल्तान में जोनल टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। जनूबी पंजाब भर से सुपीरियर ग्रुप और कॉलेजेस के प्रिंसिपल और उस्ताद शरीक हुए। रिपोर्ट करेंगे माजिद क्लासरा। सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस प्रोफेसर हामिद यूनिस खान, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर 7 प्रोफेसर नबीरुर रहमान और प्रोजेक्ट मैनेजर 7 सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेज अवेस फरत की शिरकत। सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस साउथ पंजाब के टीचर्स को स्टूडेंट्स को तालीम देने के मुतालिक ट्रेनिंग दी गई। हमने टीचर्स को ये ट्रेन किया है कि हम अपने स्टूडेंट्स को किस तरह से बेस्ट सर्विसेज दे सकते हैं। हमारा जो प्लान IQ का है, हम पाकिस्तान के अंदर इसका पॉइनियर हैं,
तो वो प्लान IQ हम किस तरह से बेस्ट डिलीवर कर सकते हैं, स्टूडेंट्स के इमोशंस क्वेश्चंस को हम किस तरह से बढ़ा सकते हैं। तो हमारी जो ट्रेनिंग होती है बड़ी क्रिएटिव किस्म की ट्रेनिंग होती हैं, इंटरेक्टिव सेशंस होते हैं। जोनल ट्रेनिंग प्रोग्राम में सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस सब कैंपस के प्रिंसिपल और असातिज़ा शरीक हैं, जिन्हें PhD स्कॉलर्स, डॉक्टर्स और दीगर प्रोफेसर ने डिपार्टमेंट्स की तर्ज पर ट्रेनिंग दी। ट्रेनिंग सेशन के इख्तिताम पर सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस साउथ पंजाब के प्रिंसिपल्स और टीचर में सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए गए। कैमरामैन काशिफ नवाज के साथ माजिद कलासरा, न्यू न्यूज़ मुल्तान। मालाकंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले तलबा और तालिबात बुनियादी सहूलियात से ही महरूम हैं। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल खटके बटखेला के तलबा फर्श पर बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। रफीउल्लाह की रिपोर्ट। जिला मालाकंड में सरकारी तालीमी इदारे सहूलियात न होने के बाइस ज़बूहाली का शिकार। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल खटके बटखेला में क्लासरूम्स और फर्नीचर न होने की वजह से तलबा तालिबात जमीन पर बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। बच्चों के बैठने की जगह का इंतजाम जो है ना वो बहुत ज़रूरी है और हुकूमत से अपील करते हैं हम कि इन बच्चों के लिए जगह का बंदोबस्त किया जाए। कमरे के नीचे जब बच्चे बैठेंगे तो धूप से भी बच सकेंगे और अपनी पढ़ाई शौक से करेंगे। स्कूल के तलबा असातिज़ा ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि स्कूल में क्लासरूम्स और फर्नीचर का बंदोबस्त किया जाए। रफीउल्लाह, न्यू न्यूज़ मालाकंड। राजनपुर में जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ मौसर कार्रवाई और इलाके में अमन व अमान मजीद बेहतर बनाने के लिए पंजाब हुकूमत बॉर्डर री पुलिस के 14 और पंजाब पुलिस के 4 मजीद थाने तामीर करेगी। इस बारे में मजीद जानेंगे राजनपुर से हमारे नुमाइंदे अता मोहम्मद से। जी अता। हुकूमत की जानिब से राजनपुर में बॉर्डर मिलिट्री पुलिस को जो है 14 नए थाने जो है तामीर करने के जो अमाउंट है वो जारी कर दी गया है, जिसमें तामीरात का काम जो है वो भी शुरू होने वाला है। और जबकि इस वक्त मेरे साथ बॉर्डर मिलिट्री कमांडेंट मौजूद हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि बॉर्डर मिलिट्री का जो हमारे ट्राइबल एरियाज़ में क्या यानी कि रोल है और नए थानों से हमारे यानी कि सिक्योरिटी पर क्या असरात जो है मस्बत आएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि 14 नए थाने जो है वो उनकी न्यू कंस्ट्रक्शन की जा रही है और उसके मकसद तो यही है कि बॉर्डर मिलिट्री पुलिस जो है वो जो उसका रोल है टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर इन द एरिया उसको बेहतर तरीके से सर अंजाम दे। इन थानों के अलावा भी ये है कि इनकी रिक्रूटमेंट भी की जा रही है और जो स्टाफ मौजूद है उसकी ट्रेनिंग भी की जा रही है। इनके लिए गाड़ियां भी परचेज़ हुई हैं और वहाँ पे जो इनका ज़रूरी इक्विपमेंट्स होता है वो भी परचेज़ होकर इनको दिया जा रहा है। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि गवर्नमेंट के इन इक़दामात से ट्राइबल एरिया का जो लॉ एंड ऑर्डर की मेंटेनेंस है वो बेहतर होगी इंशाल्लाह। हाँ जी बिल्कुल, जो है इनकी जानब से ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो हुकूमत की जानब से जो कदम उठाया गया है इससे जो है बॉर्डर मिलिट्री पुलिस की जो परफॉर्मेंस है उसमें मज़ीद जो है वो बेहतरी आएगी। जी, बारखान में मवेशी मंडी तो सज गई, लेकिन जानवरों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। लोग खरीदारी तो करना चाहते हैं लेकिन कीमतें सुनकर वापस जा रहे हैं। इसी पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद हनीफ खैतरान से। शुक्रिया। दीगर शहरों की तरह जो है जिला बारखान और रकनी शहर में भी ईद कुर्बान की जो तैयारियां हैं वो अरूज पर है। एक चीज मैं बताता चलो, रकनी शहर वो पाकिस्तान की वैध मंडी है जो सारा साल यहाँ पर माल मवेशी का कारोबार जो है वो रहता है। इस वक्त हमारे साथ एक व्यापारी मौजूद है, मजीद उनसे पूछते हैं। इस साल तो 50,000 रुपये कीमत है। पिछले साल हम लोग ये 35, 36, 32 तक लेते थे। अभी इस साल जो ये तकरीबन को मेरे ख्याल में 47, 48 का बिक रहे हैं। पिछले साल से तकरीबन 7-8 हज़ार रुपया एक दुबा महंगा हो चुका है। कहना है कि पिछले साल से इस वक्त जो कीमतें हैं वो काफी हद तक बढ़ गई है। पिछले साल जो है दुम्बा वो 30,000, इस दफा 50,000 तक फरोख्त किया जा रहा है, जबकि इंतजामिया की जानिब से कोई एहतियाती तदाबीर नहीं किए गए। अगरचे यहाँ की जो शहर के अंदर मौजूद मंडी है बारिश के बहस या कीचड़ गर्दो गुबार की वजह से इनको काफी ज्यादा मुश्किलात दरपेश हो रहे हैं। इन्होंने इंतजामिया से नई मंडी में शिफ्ट होने का मुतालबा किया है। ईद उल अजहा की आमद ऐसे में छोटे बड़े शहरों में मवेशी मंडियां कायम हो गईं। चूनिया की मवेशी मंडी में लोग अपने बच्चों के साथ खरीदारी करने पहुंच गए। बच्चे जानवरों को रंग बिरंगी रस्सियां और घंटियां बांधकर उन्हें गली और मोहल्ले की सैर करवा रहे हैं। तफसीलात जानते हैं न्यू न्यूज़ के नुमाइंदे महर वकार से। जी बिल्कुल, ईद कुर्बान की आमद है। चूनिया शहर भर में जगह जगह पर मवेशी मंडियां सजना शुरू हो गई हैं, जिसमें शहरियों की बड़ी तादाद खरीदो फरोख्त के लिए इसका रुख कर रही है। दूसरी जानब अगर आर्टिफिशियल दुकानों की बात की जाए तो यहाँ पर जो शहरियों की बड़ी तादाद है, जिसमें गानियाँ, झांझरें और खूबसूरत जो रस्सियाँ हैं वो ख़रीद रहे हैं, ताकि जो इन्होंने सुन्नत इब्राहिमी अदा करने के लिए जानवर ख़रीदे हैं उनको ये पहना सके और उनको मज़ीद खूबसूरत कर सकें।
जब हमारी शहरियों से बात हुई तो शहरियों का कहना है कि इनकी जो कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा है, जो जानवर हैं उनकी भी कीमतें कम नहीं है, लेकिन बच्चों की ज़िद है कि इनको ख़रीदा जाए ताकि जो जानवर हैं उनको पहनाया जाए, वो मज़ीद जो है वो खूबसूरत हो सकें। तो शहरियों का कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि इनकी कीमतों को कम किया जाए ताकि जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए हम इनको ख़रीदते हैं और जानवर को पहनाते हैं ताकि वो खुश हो सकें। जी, इस बुलेटिन से इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए न्यू पाकिस्तानियों।